तो अभी हम थ्योरेटिकली मीनिंग ऑफ कोरिलेशन कर चुके हैं, डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन कर चुके हैं। प्रैक्टिकल में हम मेथड्स ऑफ मेजरिंग कोरिलेशन में स्कैटर डायग्राम मेथड कर चुके हैं। नेक्स्ट मेथड है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दो मेथड्स हैं न्यूमेरिकली, एक कार्ल पियर्सन और एक स्पेयरमैन। स्पेयरमैन हमारे कोर्स में नहीं है इस साल, कोर्स डिलीशन की वजह से। Spearman's method of measuring correlation is not in the course. एक ही मेथड कोर्स में है न्यूमेरिकली, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। Carl Pearson 1867-1936 was the first person to give a mathematical formula. Scatter diagram की limitation थी, it is not a mathematical formula. तो पहला इंसान कौन था? Carl Pearson, to give a mathematical formula for measuring the degree of relationship between two variables in 1890. The Carl Pearson's coefficient of correlation is also known as product moment correlation, simple correlation coefficient. Carl Pearson's coefficient of correlation, product moment correlation, or simple correlation coefficient. It is also the most popular and widely used method to calculate correlation coefficient. It is denoted by the symbol R. R is a pure number, that is, it has no unit. Kgs, kilometers, no. Rupees, no. No symbol. It is a pure number. According to Carl Pearson, coefficient of correlation is determined by dividing what? The sum of products of deviations from their respective means by dividing them by their number of pairs and their standard deviations. So, ध्यान से देखना, coefficient of correlation is determined by dividing what? The summation of product of deviations from their respective mean. तो deviation from the respective mean क्या होता है? अगर x सीरीज का हो तो deviation from the respective mean small x, deviation from the respective mean y सीरीज का small y, x into y करोगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा, सिग्मा एक्स वाई करोगे तो न्यूमरेटर आ गया। इसको मैं क्या बोलूंगा? दिस इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ deviations from the respective means. तो न्यूमरेटर समझ आया? ये है एक्स वाई प्रोडक्ट, तो एक्स इंटू वाई करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस। न्यूमरेटर समझ आया? चल सकता हूं आगे? Yes, sir. डिवाइडिंग देम बाय द नंबर ऑफ पेयर्स, तो n नंबर ऑफ पेयर्स एंड देयर स्टैंडर्ड डेविएशंस, नंबर ऑफ पेयर्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो डेफिनेशन से रिलेट करेंगे तो फॉर्मूला याद रहेगा। n is the number of pair of observations, small x is the deviation from the mean, small y deviation from the mean y series, standard deviation x, square root of sigma x square by n, sigma y square by n, direct method, x square by n, small x, small y. R is the coefficient of correlation. अब ध्यान से देखना, this is the general formula for correlation. Carl Pearson's coefficient of correlation and covariance. Coefficient of correlation मैंने आपको बताया अभी. Carl Pearson's method of calculating coefficient of correlation is based on the covariance of concerned variables. Correct? Covariance क्या है? Covariance is a statistical representation of the degree to which two variables vary together. Basically, it is a number that reflects the degree to which two variables vary together. Covariance. Covariance
is sigma xy upon n. कोवेरियंस एक अलग चीज है, कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक अलग चीज है. तो दिस इज कोवेरियंस. तो अगर कैलकुलेट कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन. अब ध्यान से देखना, जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर द फॉर्मूला मेंशन्ड for computing Pearson's coefficient of correlation can be transformed to a much easier formula. Very very important. ध्यान से देखना, ये स्टेप्स इंपॉर्टेंट है कि जो बेसिक फॉर्मूला है सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डिविएशन वाई, इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जा सकता है. अब ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है, जनरल फॉर्मूला है, यहाँ तक तो हम पहुंच चुके हैं. यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट कि इसमें कौन सा कंपोनेंट क्या है? नो सर. अब ध्यान से देखना, स्टैंडर्ड डिविएशन का मैंने आपको क्या बताया, स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स का फॉर्मूला क्या है वेदांश? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इज सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन, स्टैंडर्ड डिविएशन वाई सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन एन. तो फॉर्मूला यही है. अब इसको रिप्लेस कर दो, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स को रिप्लेस कर दो बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर रूट. अब ध्यान से देखना, चलो मैं आपको यहाँ वर्किंग करके दिखाता हूँ, होते हुए देखेंगे तो आपके लिए और इजी हो जाएगा. सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिविएशंस सिग्मा एक्स वाई एन इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई. अब स्टैंडर्ड डिविएशन, अब इसी को रिप्लेस कर रहे हैं, सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन इंटू 1 अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इंटू 1 अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई. सेम है दोनों बातें? यस सर. सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन एन. सेम है ये दोनों बातें? यस सर. अब इसी का प्रोडक्ट निकाल देंगे, स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एन, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या होता है? 2. तो स्क्वायर रूट ऑफ एन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एन क्या हो जाएगा? n. तो स्क्वायर रूट ऑफ एन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एन, एन बचा, यस सर. एन इंटू 1 बाय एन, एन एन कट सकता है, यस सर. यस सर. एन इंटू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन इंटू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन. एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को भूल जाओ एक सेकंड के लिए, तो इसको मैं बोल सकता हूं कि स्क्वायर रूट एन इंटू स्क्वायर रूट एन, दिस विल बी एन. तो एन और एन कट जाएगा, यस सर. तो यहां से शॉर्टकट डिराइव हुआ. तो स्क्वायर रूट एन, ये एन कट गया, बचा सिर्फ और सिर्फ क्या? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट. तो ये शॉर्टकट कैसे आया, समझ आ गया आपको? इजी स्टेप समझ आ गए? यस सर. तो पॉइंट सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई, और ये सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर, एग्जैक्टली सेम रिजल्ट देगा. तो एडवांटेज क्या है? आपको स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली कोरिलेशन निकाल पाएंगे. तो कन्वीनियंट मेथड हो जाएगा. यस और नो? Yes sir. But be very very careful. It must be noted that this method is to be applied only when the deviations of items are taken from actual means and not assumed mean. So small x is deviation from the actual mean, not assumed mean. हमने मीन में, अरिथमेटिक मीन में देखा ना, deviation from the assumed mean उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? dx, small dx, deviation from the assumed mean. Deviation from actual mean, small x.
बी केयरफुल कि ये जो मेथड है कन्वीनियंट मेथड, easier formula, it can be used only when the deviation is being calculated from the actual mean and not the assumed mean. जनरल फॉर्मूला और उससे जो हमने डिराइव किया शॉर्टकट, समझ आया? Yes, sir. But you have to be very very careful that this can be used only and only when we have or we are using the actual means and not the assumed means. तो ये था फॉर्मूला और जनरल फॉर्मूला. अभी तो मेथड वाइज हम करेंगे कि एक्चुअल मीन मेथड क्या है, स्टेप डिविएशन, शॉर्टकट मेथड, वो सब हम अभी करेंगे. बट दिस वाज द जनरल फॉर्मूला एंड द मीनिंग ऑफ कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन.